Hello students, welcome back. In last video we have studied about transactions through bank. Illustration 6 में ऐसे कई transaction दिए गए हैं which are done through bank. So let's understand. First transaction is a current account is opened with SBI Bank by depositing 20,000. 20,000 बैंक में डिपॉजिट किया और अकाउंट ओपन किया तो डिपॉजिटेड इन बैंक की जर्नल एंट्री होती है. Here the receiver of cash is SBI Bank, so SBI Bank account debit to cash account, amount is 20,000. Next is goods sold for 5,000, the amount of which directly deposited in bank. So bank receives the amount, so receiver debit the receiver. So bank account is debit and sales account is credit. So bank account debit to sales account rupees 5,000. Next is furniture of rupees 10,000 is purchased. Payment is made through check. So furniture comes into the business. So furniture account debit and payment made through bank. So bank account credit. Next is withdrawn from bank rupees 400 for personal use and 700 for office expense. So the amount of personal use which is withdrawn from bank is debited to drawing account, and the amount which is withdrawn for office expense, the amount is debited to cash account. So the journal entry will be drawing account debit 400, cash account debit 700 to bank 1,100. Next is a check of rupees 1,500 received from Virat. विराट के पास से चेक मिला which is received by bank, so debit the receiver के रूल के हिसाब से बैंक अकाउंट debit to विराट अकाउंट. गिवर इज विराट, चेक गिवर इज विराट and चेक रिसीवर इज बैंक. So उस हिसाब से debit the receiver and credit the giver. Next is rupees 3,000 sold on cash to Parthiv, out of which 50% amount received by check. 3,000 के गुड्स सेल किए, 50% अमाउंट जो है वो चेक से मिल गई, 50% अभी भी बाकी है which is कैश अकाउंट डेबिट. 3,000 के गुड्स कैश से पार्थिव को सेल किए, 50% का उसने चेक दिया और 50% कैश दिया. सो कैश अकाउंट डेबिट 1,500, बैंक अकाउंट डेबिट 1,500 टू सेल्स अकाउंट 3,000. नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300 आर पेड बाय चेक. अब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट विच इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस 450. Life insurance premium is a personal expense which is done through business, that's why it is debited to drawing account debit 300 to bank account 750. Next is a check of dividend warrant of rupees 200 deposited in bank. अब dividend जो है वो इनकम है कोई भी बिजनेस के लिए, so bank account debit to dividend account. Next is a check of rupees 800. Bank has credited rupees 100 for bank interest and debited rupees 50 as bank charges. यहाँ पे दोनों की अलग अलग एंट्री अगर हम करें तो बैंक इंटरेस्ट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 100 to bank interest account 100. Thereafter bank charges, so bank charges account debit 50 to bank account 50. Next is a check of rupees 800 issued to Param as a final सेटलमेंट. सो 28 की एंट्री होगी परम अकाउंट डेबिट, रिसीवर ऑफ चेक एंड गिवर ऑफ चेक के हिसाब से. परम इज अ रिसीवर, दैट्स व्हाई परम अकाउंट डेबिट एंड बैंक इज अ गिवर, बैंक अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट इज अ चेक ऑफ रुपीज 600 इज रिसीव्ड फ्रॉम शिवाजी. चेक मिला किसके पास से? शिवाजी के पास से. अब चेक रिसीवर है बैंक और चेक गिवर है शिवाजी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शिवाजीज account. Clear? Next topic is loan and interest on loan. अगर लोन लेते हैं और उसके इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करना पड़ता है, या तो फिर लोन हम देते हैं किसी को और उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होगी? फर्स्ट इज लोन बोरोड.
दो तरह की लोन होती है, एक तो लोन बोरोड, किसी के पास से ली गई हुई लोन, और दूसरी होती है लोन लेंड, किसी को दी गई हुई लोन। तो फर्स्ट इज लोन बोरोड। अब उसकी इफेक्ट, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड, दूसरों के पास से थर्ड पार्टी या तो फिर बैंक या तो फिर लोन किस किस से ले सकते हैं हम, वी कैन बोरो द लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल फर्म, अदर पर्सन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी पास से हम लोन ले सकते हैं। सो व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड वी कैन डू द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आएगी तो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू। अब कितने परसेंट की लोन है, परसेंट यानी कि कितने परसेंट इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करना है, तो उस पर्सन, सपोज कि 8% की लोन है तो टू 8% किसने दी है तो उसका नाम, और लोन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो व्हेन अमाउंट रिसीव्ड वी डू दिस अकाउंटिंग एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज लोन अकाउंट, जितने भी परसेंट आपको सम में बोला जाए उस हिसाब से क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लोन ली है तो इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज पेड इन लोन बोरो, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, दिस इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, किससे पे करते हो, कैश में करते हो या तो फिर चेक में, उस हिसाब से क्रेडिट होगा टू कैश और बैंक का। The second is लोन लेंड, किसी को दी गई हुई लोन, हमारे पास पैसे पड़े हैं, रिजर्व रखा है, उसमें से दूसरे को जरूरत है तो उस हिसाब से हम उसको लोन देते हैं। When amount is given, अब लोन की अमाउंट जब हम देते हैं तो लोन टू किसको देते हैं, उस पर्सन का नाम, लोन टू डैश अकाउंट डेबिट, उस पर्सन का नाम यहाँ पे आएगा डैश में, टू कैश, cash goes out from the business, that's why cash account is credited. So the accounting entries, when amount is given to the person, loan to the person account debit to cash account. Second is for interest on loan. अब lent loan में क्या होगा, we receive the interest on lent loan, lended money के ऊपर हमें interest मिलेगा। So cash and bank account debit किस फॉर्म में हमें मिलता है, either cash or bank, so cash or bank account debit to interest on loan. Interest on lent loan is income for the business, that's why it is credited. So the accounting entries of interest on lent loan is cash or bank account debit to interest on loan account. So in illustration number 7 there are 4 adjustments related to loan given or loan borrowed. So let's understand. A loan of rupees 15,000 at 14% is borrowed from Pawan for business. यहाँ पे है borrowing loan. So इसमें लोन बोरो की है, अमाउंट हमें मिली है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू 14% लोन ऑफ पावन अकाउंट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 40% loan of 15,000 at 14% is borrowed from Pawan for business. So यहाँ पे होगा cash account debit to 14% loan of Pawan's account 15,000. Second is a loan of 18,000 at 18% is given to Pushkar. यहाँ पे हम लोन दे रहे हैं तो उसकी मनी हमने उसको दिया, उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी लोन टू पुष्कर अकाउंट डेबिट टू कैश account. Next is Pawan has paid interest of 6 months on given loan. पावन को गिवन लोन के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है और उसने पे कर दिया है। तो व्हेन पावन को हमने लोन, पावन के पास से हमने लोन ली थी, तो अब हमें पावन को पेमेंट करना है, तो अमाउंट थी 15,000 के कितने परसेंट की थी लोन, विच इज 14% एंड 6 मंथ। इस तरह से जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 15,000 के ऊपर 14% पूरे साल का इंटरेस्ट होता है, लेकिन वी हैव टू पे ओनली इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, दैट्स व्हाई इट इज मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, सो वी गेट द इंटरेस्ट 1,050 रुपीज
we have to pay to Pawan for borrowing loan. So the second entry is interest on loan interest account debit to cash or bank account. लोन का इंटरेस्ट पे किया, पावन के पास से हमने जो लोन ली थी उसका इंटरेस्ट हमने पे किया. That's why interest on loan account debit which is destined for us to cash account 1050. Next is from Pushkar interest on loan is received for 6 months. पुष्कर को जो हमने लोन दी थी, पुष्कर ने हमें पे किया है 6 मंथ का इंटरेस्ट. The amount was 18,000 into the rate of interest is 18%. अब 18% is for 1 year. He paid for 6 months, so it is divided by multiplied by 6 and divided by 12. So we get 1620 as an interest for 6 months. पावन ने हमें इंटरेस्ट, पुष्कर ने हमें इंटरेस्ट पे किया. That's why we get the amount cash account debit. Cash comes in to interest on loan account. For us, this interest is income. So इस तरह से लैंड लोन और बोरोइंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज 2 होती है. पहले तो जब हम मनी देते हैं या तो लेते हैं, दूसरा इंटरेस्ट या तो पे करते हैं या तो रिसीव करते हैं. सो इस वीडियो में यहाँ तक. नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड अलाउंस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. इसको रिवाइज कीजिए और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.